Bismillahirrahmanirrahim, my dear YouTube family members. I hope you would be fine and you would be enjoying your Ramadan as well. So the purpose of making today's video is that I'm going to share one of essay topics that was asked by examiner in 2021. So as it appears from the screen as well, that the today's topic is gender equality, a popular slogan. ओके तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं सो देयर आर सम वेरी एसेंशियल पॉइंट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल which words which are going to be used in that title you should be aware of the meanings, okay? And the second thing is that you should be knowing that what are the key words in that essay, okay? And accordingly you are going to build that relationship. You can go in favor or you can go against that topic and so on. तो जब हम जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन की बात करते हैं तो इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं जेंडर इक्वलिटी है स्लोगन है फिर हम यूज करते हैं पॉपुलर स्लोगन ओके सो एज यू नो व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वलिटी सो जेंडर इक्वलिटी मींस वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उसमें हम मेल की भी बात कर रहे हैं फीमेल की भी बात कर रहे हैं बॉयज की भी बात कर रहे हैं और गर्ल्स की भी बात कर रहे हैं सो यहाँ पे जो जब हम जेंडर इक्वालिटी का वर्ड यूज कर रहे हैं तो जेंडर इक्वालिटी मींस in term of their treatment, in term of their rights, in term of their responsibilities, in term of their privilege. और जब हम स्लोगन की बात करते हैं what do you mean by slogan? Slogan means you can say simplifier of communication, and only that slogan becomes popular, which is going, you can say that is much apparent in wide use. अगर वो स्लोगन कम्युनिटी में वो यूज ही नहीं हो रहा तो देन इट इज नॉट अ पॉपुलर स्लोगन सो पॉपुलर मींस कि जो दैट इज प्रिवेलिंग अमंग लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ओके जब हम इस ऐसे के कीवर्ड्स की बात करते हैं तो इट बेसिकली comprises two words, gender equality and then there's a popular slogan, okay? So all the time you have the margin whether you are going to support that relationship, that yes, gender equality is a popular slogan. Again, you have your own freedom that you may reject that statement. You can say yes, then you can say no, gender equality is not a popular slogan. There's no other hard and fast rule that you have to follow only certain directions. It depends on your own knowledge, it depends on your own data, and it depends on your own arguments how you are going to build it. So basically you're totally independent. Whatever the perspective you are going to take up, accordingly you can do it, as such there's no any limitation on you. Okay, so whenever you are going to make your outline, this is a formal outline, but before that you can go for informal outline and you can make your rough outline. So whatever the points they come to your mind, you may narrow down, okay? And later on you may think that how you can make some sort of a more connection and what should be the scheme of the arguments and what could be the, you can say, what could be the scheme of your presentation as well, which point that need to be elaborated first, which point that need to be discussed later, which example that is going to fit where. So obviously you may spend some time, and whatever the topic you are going to do it, and even you may be certain that yes, you have much clarity, you have more understanding, but still I would advise you that you have to go for rough outline first, okay? So uh, because we are having positive time, I'm not going to get into detail of informal outline. I'm just going to share the final outline. That is, as usual, you are going to start with the introduction. Okay, one thing more. Some students, rather than giving the heading of introduction or the bullet of introduction, they say that it's a better that we need to start with the opening sentence of the paragraph. I would not support this idea, and I would say that it is a better if you, in the introduction, you may mention just introduction, because if you are going to write your opening sentence here and still when you're going to make your introduction and again that sentence is going to be repeated, I think it is some kind of repetition, so you need to avoid it. But still some people they do it. I don't say that maybe if you have more sharpness and you are more clever in making different wording to explain the same narrative, so that depends on you, you can do it. But still I would advise you that it's a better that in outline, even if you're going to write just the word introduction and you're not going to start from the opening sentence, it would be fine, okay? So the first
bullet would be out introduction. The second bullet would be theoretical perspective. In theory, theoretical perspective, you're basically going to take support of some theory that what the meaning that you are going to draw from certain words, and accordingly how you are going to build that relationship. And then you may go for the reasons for emerging gender equality as a popular slogan. That why do you think so? It is very important, and why we are going to support this such ideology. It means there are some sort of there will be some factors on the basis of which you're going to build your argument. Okay, then you can say reasons for emerging gender equality popular slogan. You may have for the subheadings or subparagraphs: lack of independent decisions, discriminatory attitude, gender discriminatory structure of our society, and even women, they are going to be denied. Uh, you can say they are going to be deprived of their identity, and there's a denial of identity, and some other type of gender-based violence. And you may go for next bullet could be historical developments for emerging gender equality as a popular slogan. So there are two further sub points: social initiatives and legal initiatives. Social initiatives may be further divided into various subheadings depending on the data you have, and the same is the case that will be applicable to legal initiatives. And then you can talk of analyzing changing meanings of gender equality, that what do you mean by shrinking concept, and how you are going to understand the concept of bending when you're going to talk of gender equality. Okay, next you can talk of that when you say gender equality is a popular slogan, so basically what are the advantages you have received so far, what sort of improvement you have observed in society, accordingly you may give some instances, and last but not least you have to conclude something. Okay, so basically whatever you are going to make your concluding remark, so your concluding remarks and your introduction, so basically that's a reflection of each other. So you can't say the wording would be same, wording would be different, but as well as concept is concerned, that would be same introduction as well as in your conclusion as well. Okay, so that would be your outline in our today's essay. So if you can talk of thesis statement, so again, I'm going to make here one thesis statement. So, and again, I would say that depends on the data, depends on the argument, depends on the perspective which you are going to explain here, that what you think so that it would be the best thesis statement. And it may vary from individual to individual. But for your convenience, I have made a one outline for you. Okay, and whenever you're going to make outline, you need to be sure of certain things. For example, if you say that why you're going to support or why you're going to reject that relationship, you have to mention, and you have to mention some goals or reasons, and you have to mention some outcome, that that is a possible outcome, or these are the possible advantages on the basis of which you are going to support this. So depending on your own thinking and depending on your own data, you are going to make your own thesis statement. Okay, since I'm going to support that relationship, yes, gender equality is a popular slogan. So depending on that strategy, I have made my own thesis statement that yes, since gender equality norms, they have been established as integral part of international community, therefore, gender equality is a popular slogan, which is not only attractive for boosting economic growth, eradicating poverty, and achieving the sustainable development goals. But it is also a provider of considerable benefits to to genders in the field of education, labor market, health, politics, law, marriage, and family. Okay, so that is a thesis statement of our essay topic. Okay, by the way, you can make your own thesis statement and you may share with me in comment section of this video. Okay, so if we are going to start with the introduction, that gender equality is a popular slogan, so these are the some points which you are going to which you can reproduce in your introduction part. Okay, so you can say yes, gender equality is also going to be accepted as a fundamental right. Okay, so not only it is going to be accepted as a fundamental right, but at the same time gender equality is going to be considered as a tool, and this is a means of prosperous, peaceful, and sustainable growth as well. And when we are talking of a gender equality means that we are talking of equal opportunities, that all boys and girls
men, women, they need to be treated in same perspective. They have same rights, they have same responsibilities, and they have the same potentials. Okay, and at the same time, we can say that they could be treated as a partner, not only at home but also in community as well as in society. And when we're talking of the roles of individuals, male or female, so basically we are going to value them equally. So they could participate very well and they could explore their potential in political, economic, socio, and cultural perspective. Okay, so you have to make it more clear as well. When we say that gender equality means that we are talking of equal responsibilities, we're talking of equal roles. At the same time, gender equality doesn't mean that we are going to talk of biological differences. हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम लड़की को लड़के के बराबर कर दें कि वो biologically same है. Yes, male and female biologically they are different. They have some biological differences. Naturally, they are different from each other. But when we're talking of their responsibilities, when we're talking of their rights, when we're talking of their potentials, so they remain same. तो जब हम इसके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कि मेल फीमेल से डिफरेंट है ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उस डिबेट को नहीं लाएंगे. सो दिस इज आवर लिमिटेशन ऑफ आवर टॉपिक. ओके, और जब हम कहते हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये दैट इज अ पॉपुलर स्लोगन, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज मोर चॉइसेस टू इंडिविजुअल. वी वांट टू रिजेक्ट दैट डिबेट दैट रोल्स they are, you can say they are divided. No, we can say that roles, they are same and individuals have equal potential. So we should not accept individuals on the basis of gender stereotypes or biasnesses. Okay, so you can say yes, we are going to support individuals irrespective of their caste, color, religion, belief, and so on. So they can play their roles, whatever they want in society. And at the same time, when we say that in the last few decades, gender equality is going to be merged as a good, you can say that it is going to be considered as a hot topic of human rights discourses. At the same time, you can say that gender equality is considered as essential if you're talking of your development goals. Okay, so in 1990s, so gender streaming has also, you can say that this concept is also uh, this concept got more popularity in the world. Gender mainstreaming means that in more individuals, you can say men and women, they need to be included. They need to be included in documents, they need to be included in policy making process, and they need to be included in your all activities, and you cannot make some sort of inequality. Okay, so equal opportunity should be provided to all individuals. Okay, so now I'm going to move to theoretical perspective. As I mentioned it earlier, that theoretical perspective, in theoretical perspective heading, basically we are going to take support from some theory. So when we say gender equality is a global, gender equality is a popular slogan. So we are going to support it with the help of liberal feminism theory. लिबरल फेमिनिज्म थ्योरी ये कहती है कि जो मेल है या फीमेल है दोनों बराबर हैं, उनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, उनके रोल्स में, उनके पोटेंशियल्स में, और उनकी जो एनर्जी है दोनों की सेम है. Biologically they have same mental capabilities, but it is on the part of society that society is going to accept them for different roles. तो जो लिबरल फेमिनिज्म थ्योरी है वो इस चीज को नेगेट करती है कि आप ये कहें कि फॉल्स बिलीफ, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि लीडरशिप, तो हम आपको अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना पड़ेगा तो whom you are going to prefer, obviously you are going to give more weight to a male. इसी तरह हम कहते हैं कि जो फीमेल है, अगर हम कहें irrational, so irrational is going to be used word with boys or girls, obviously you are going to use with women. So obviously जब आप फीमेल को ये कहते हैं कि वो irrational है, what you can conclude here that they are going to be neglected in leadership role. ठीक है, इसी तरह जब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अग्रेसिव, ठीक है, हम कहते हैं कि मैन अग्रेसिव है, असर्टिव है, इसलिए आप उनको जो डिफेंस रोल है उसमें आप उनके रोल को बढ़ा देते हैं. तो बहरहाल जो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, उसमें सर्टेन बिलीफ्स जो हैं, देयर सोशल बिलीफ्स, दे आर गोइंग टू अटैच विद सर्टेन इंडिविजुअल्स कि वो मेन के साथ और है, वुमेन के साथ और है.
थ्योरेटिकल जो लिबरल फेमिनिज्म थ्योरी है उस डिबेट को नेगेट करती है कि ये जितने भी बिलीव्स हैं दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। बायोलॉजिकली दोनों इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंट हैं, दे हैव सेम मेंटल कैपेबिलिटीज, दे हैव सेम कैलिबर्स एंड दे कैन परफॉर्म द सेम रोल if they're going to be engaged in society for development process. ठीक है, okay, that would be theoretical perspective. Okay, next जब हम कहते हैं कि reasons for emerging gender equality as a popular slogan. So basically we are living in a patriarchal society where there is a discrimination and we are going to divide role in a clear cut division. We are going to understand society on two roles. One is a breadwinner and other is a homemaker. So men are going to be considered as a breadwinner, women are going to be considered as a homemaker. तो ये जो patriarchal society है जिसमें एक domination है और दूसरे में submission है, तो इस जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो जब हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन है, तो इट मींस वी आर गोइंग टू मेक इंडिविजुअल रियलाइज ऑफ देयर पोटेंशियल, that they are equal and they need to be given equal, they need to be treated equal, and they need to be presented same, you can say, atmosphere in society. Okay, so इसमें quotation भी है ड्रोसिला कॉर्नल की कि many of us have learned to live with workplaces and a society in general in which we are denied equal respect. Again, that is a hallmark of our patriarchal society where you're going to observe more inequality and where there's a more discrimination and biasness, where you're going to take, where you have one parameter for male and you have another parameter for female. तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए और इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देने के लिए कि वो भी सोसाइटी में इक्वली अपना रोल प्ले कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, जिसके लिए हम कहते हैं कि these are certain reasons for emerging gender equality as a popular slogan. ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है कि ये क्यों इसको पॉपुलर स्लोगन के तौर पे किया गया, क्योंकि एक तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था। डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के if a female, even a female, when a female comes to this world, so she is going to be treated by her mother with despair, okay, and guilt. And before marriage, जो एक फीमेल है उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है in term of education, health, in term of marriage decision and some other decision as well. So basically in every activity she is going to be treated as a property or commodity of her father, or after marriage she is going to be treated as a property of her husband. तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है उस चीज को डिस्कस करने के लिए जरूरी था कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाए एज अ पॉपुलर स्लोगन, सो जो फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है उसको डिस्कस किया जा सके। ओके, अगर हम इस डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी में देखें, सो दैट इज अ रिपोर्ट दैट वाज गिवन बाय यूनिसेफ इन 2020 कि अगर हम देखें कि 10 में कितने जो लड़के हैं वो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो 10 में से एक केस आपको मिलेगा जो ऐसा नहीं है कि ना तो वो जॉब करता है ना ही वो पढ़ा लिखा है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो हर 4 में से एक लड़की आपको जरूर नजर आएगी कि ना तो वो जॉब है ना वो पढ़ी लिखी है। तो इट मींस इन आवर सोसाइटी वी डोंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजरियल रोल्स की, दैट इज अ रिपोर्ट दैट वाज इशूड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। सो बेसिकली अगर आप 7 जो पोस्ट हैं अगर आप उनको एडवर्टाइज करते हैं और वो मैनेजरियल पोस्ट है, सो 7 में से जो 6 पोस्ट हैं वो मेन को जाएंगी और जो एक पोस्ट है वो फीमेल के पास जाएगी। तो अगेन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उसमें हमेशा मेल को प्रेफर करते हैं और हम वुमेन के अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है उसको सपोर्ट करते हैं। सो दैट बेसिकली ये जो एक थिंकिंग है उसको रिजेक्ट करने के लिए देयर वाज अ नीड टू सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन। ओके, another sub bullet would be like lack of independent decisions कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं, they don't have independent decision, ठीक
कि आप उसको पॉलिटिकल डोमेन में देख लें कि फीमेल का रोल एज अ वोटर, फीमेल का रोल जो पॉलिटिकल प्रोसेस में एज अ कैंडिडेट या एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नॉट फ्री फ्रॉम सर्टेन चैलेंजेस एंड दैट इज नॉट फ्री फ्रॉम सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन एंड फीमेल फेसेस सम सॉर्ट ऑफ मोर यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस। इसी तरह जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में जो फीमेल है उसको एनकरेज नहीं किया जाता फॉर पब्लिक रोल। आप उसको स्पेस दे भी दें तो स्टिल आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एज वी डिस्कस इन लास्ट स्लाइड। और फिर उसकी जॉब प्रमोशन और उसके पे इक्वालिटी के इश्यूज, सम अदर इश्यूज वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जब हम उसके एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन में कि जो फीमेल है उसको प्रीफर नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सेटअप वेयर देयर इज अ मोर मेल chauvinism. You are going to support male at the cost of a female. You have a more inclination towards a male baby rather than a female baby. तो जब आप एक फीमेल को रिसीव ही एक गिल्ट के साथ और एक डिस्पेयर के साथ उसको रिसीव कर रहे हैं, so how we can expect that a female would be treated in a very conducive way. तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से उसको एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और लाइकवाइज जब हम फिर कहते हैं कि उसके जो मैरिज डिसीजन है, इवन फीमेल इज नॉट इंडिपेंडेंट कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी करवा सके, स्टिल अगर वो अपनी मर्जी से शादी करवाती है so that female is going to be killed in the name of honor, ठीक है। And at the same time if she is going to get married, so she's having no such choice on birth control, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और many other health issues they are going to be noticed as well. तो हम ये कहते हैं कि ये again that is some sort of a discrimination जिसकी वजह से that was a dire need to support gender equality as a popular slogan. So these are the some statistics कि अगर हम ये जो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें उनकी जो उसका जो रिव्यू है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें दैट इज अपडेटेड डाटा बाय यूनाइटेड नेशंस कि अभी जो कंट्रीज हैं 18 कंट्रीज दे आर नंबर जहां पे जो हस्बैंड है वो अपनी उसकी जो हस्बैंड है वो अपनी स्पाउस को रोक सकता है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, स्टिल इन 18 कंट्रीज एंड लीगली दैट इज एक्सेप्टेड। ओके, और इवन इन द वर्ल्ड 39 जो कंट्रीज हैं, अगेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इनइक्वालिटी कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में जो मेल का शेयर होना चाहिए और जो फीमेल का शेयर है दैट इज अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड इक्वल। ओके, इसी तरह जब हम कहते हैं कि 49 वो कंट्रीज हैं जहां पे 49 कंट्रीज पे दे हैव नॉट एनेक्टेड सच लॉज टू डिस्करेज डोमेस्टिक वायलेंस। तो इट मींस कि 49 कंट्रीज ने इस पे लॉ मेकिंग ही नहीं की हुई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस को नेशनल लेवल पे डिस्करेज किया जा सके और नेशनल लेवल पे को लॉ मेकिंग की गई हो। Or likewise, when we're talking of women's situation in the field of education in the form of discrimination, so you can say, even if you're talking of just 3 countries, Mali, Niger, and South Sudan, so these 3 countries, they have almost 4 million girls who are out of school. Again, that is very discriminatory practice. Or that is the last point, that is the point number 4, Mali, Niger, and Sudan. That is the report that was issued by UNESCO. Okay. ओके, फिर हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर, कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली कि जब हम कहते हैं ना वायलेंस होता है तो वायलेंस में पहले स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है फिर डायरेक्ट वायलेंस होता है। हम फीमेल को ट्रेन करते हैं, उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि जो फीमेल है, फीमेल बड़ा अच्छा काम कर रही है कि अगर वो घर में रहती है or she takes more interest in domestic affairs, and even if she's performing domestic affair, we are going to make that a female realize that it is her duty to do it. At the same time जो एक मेल है, मेल को हम encourage करते हैं to take more part in public role. At the same time we are going to give such impression that male role has a more weighted in terms of economic value as well as the social value. Again that is our discriminatory factor, जिसकी वजह से क्योंकि फीमेल को हम लिमिट कर देते हैं घर की हद तक और हम उसको डिस्करेज करते हैं टू टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वो अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। और इवन के जब हम बात करते हैं ना एक फेमिनिस्ट सीमन द बोवर, उसकी बुक है द सेकंड सेक्स, that book was published in 1949 in French language, but later it was going to be published in English language as well during 1950s. तो जो सीमन द बोवर है वो कहती है कि इवन फीमेल जो है इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, फीमेल को उसकी आइडेंटिटी भी सही नहीं मिलती,
इससे ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल कि जब हम कहते हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल, व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल, सो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन, who is going to explain that what do you mean by feminine role. So all that illustration, every description that is going to be made by a male, तो उनका ये ख्याल है कि जो फीमेल का रोल है वो रोल फीमेल का वही है जो मेल वो देता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। Sorry. Okay, so according to Simone de Beauvoir, there are three factors on the basis of which women they have been a victim of violence. ठीक है, और जो women है they are going to face discriminatory practices in society. एक तो जो उसमें फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वेमेन के एक्सप्लॉयटेशन में या उसकी डिस्क्रिमिनेशन में, वो ये कि जो फीमेल है शी डजंट हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक पावर, प्रॉपर्टी, मनी, अदर रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पे ये होता है कि शी रियलाइजेस शी इज डिपेंडेंट ऑन अ मेल, कि ये उसकी मेल के बगैर उसकी सर्वाइवल नहीं होगी, शी थिंक्स साइकोलॉजिकली, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर डिपेंड करती है और फिर एक्सप्लॉइट होती है, क्योंकि फीमेल का रोल डिफाइन ही मेल करता है। और थर्ड जो उसकी रीजन जिसकी वजह से फीमेल हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉइट होती है, सिमन द बोवर का ये ख्याल था कि जो फीमेल है शी इज गोइंग टू सीक प्लेयर while being defined as other, कि ये जो फीमेल का जो स्टेटस है कि अगर हम सोसाइटी में कहते हैं कि सुपरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, तो ये सुपरियोरिटी इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द मेन और इन्फीरियोरिटी दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द वुमेन। लेकिन ये जो स्टेटस है उसका कि हैविंग स्टेटस एज अदर आइडेंटिटी, तो वो इवन इस स्टेटस से भी प्लेयर सीख करती है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिसकी वजह से सोसाइटी में फीमेल को एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, और उसका जो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो दैट बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओके, और इसमें से अगर हम देखें कि ये उसमें वॉयलेंस से रिलेटेड थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये जो है यूनेस्को की रिपोर्ट है कि फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 19, कि अगर हम देखें कि जो एक फीमेल है, एक फीमेल अपनी इंटायर लाइफ में सेक्सुअल वायलेंस का कितना विक्टिम बनती है, सो 20 में से जो एक लड़की है वो 4 सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, एक तो है ना कि वायलेंस की काफी टाइप्स हैं, वो अभी खैर ड्यू टू पास्ट ऑफ टाइम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, तो लेकिन जस्ट वो अगर हम फोर्स वायलेंस की बात करें, सो 20 में से एक लड़की यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक, और अराउंड उनका नंबर 13 मिलियन बनता है, जो कि अपनी लाइफ टाइम में फोर्स वायलेंस को फेस करती हैं। और अकॉर्डिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, जो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो एक फीमेल अपनी लाइफ में जो ओवरऑल वायलेंस को फेस करती है, सो 1 आउट ऑफ 3, इट मीन 33% जो वुमेन हैं इन their lifetime they are going to face violence। इसके अलावा जो बाकी अगर हम बात करें कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस में जो है एसिड अटैक्स भी आ जाते हैं, उसमें ऑनर किलिंग भी आ जाता है। ठीक है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस में आपका मैरिटल रेप वो भी उसमें शामिल हो जाता है, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक वायलेंस, ठीक है, वेजेस डिस्पैरिटी वो भी इसमें आ जाता है, ग्लास सीलिंग वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, एनी वो फर्दर एक डिबेट है। ठीक है, कि मोस्टली हम वायलेंस को 4 तरह के कहते हैं, फिजिकल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है और इकोनॉमिक वायलेंस है। सो यू कैन make more discussion here that what could be the forms of those violence. Okay. अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की बात करें फॉर इमर्जिंग जेंडर इक्वालिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन, तो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकली डेवलपमेंट्स में देयर आर 2 इनिशिएटिव्स, एक तो जो है सोशल प्रोग्रेस है या सोशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और सोशल इनिशिएटिव्स, और दूसरे नंबर पे जो है वो लीगल इनिशिएटिव्स या लीगल जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को एज अ पॉपुलर स्लोगन के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। अगर हम सोशल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसको हम लिंक करते हैं मोस्टली विद द फेमिनिज्म मूवमेंट, जो है फेमिनिज्म वेव जो है उनके साथ लिंक करते हैं। फेमिनिज्म जो है अगर हम इसकी वेव्स की बात करें तो टोटल देयर आर 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। जो फर्स्ट वेव है वो दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, और जो कि मिड 19th सेंचुरी से लेकर टिल 1920 तक है, दैट इज द फर्स्ट वेव। और जो सेकंड वेव है वो फ्रॉम 1960 से 1980s, और जो थर्ड वेव है वो 1980s 1990 से लेके ऑनवर्ड जो थर्ड वेव है। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो वुमेन थी उन्होंने अपने राइट के लिए जो एक उन्होंने जो आप ये कह लें कि एक अपने अपनी जो डिमांड्स थी फॉर द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने फॉर्मली प्रेजेंट की,
तो दैट इज नोन एज अ डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। डेक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट जो था दैट वाज आउटकम ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, और फर्स्ट जो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है दैट वाज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 में हुई थी न्यूयॉर्क, जिसमें बेसिकली 300 जो वुमेन थी, सॉरी 300 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 200 फीमेल थी, 100 मैन थे, ठीक है। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फॉर्मल वे, उससे पहले भी इनफॉर्मली एफर्ट्स होती रही हैं, लेकिन पहली दफा उन्होंने फॉर्मली जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है 12 रेजोल्यूशन उन्होंने अपनी पास की, और दैट इज नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है, जो उन्होंने पास की एज सेनेका फॉल्स कन्वेंशन न्यूयॉर्क 1848। ओके, तो उसमें उनकी जो डिमांड्स थी, मुख्तलिफ डिमांड्स थी, उसमें से जो एक थी फॉर एग्जांपल ये था कि फीमेल को राइट टू एजुकेशन दिया जाए, फीमेल को इनहेरिटेंस दी जाए, ठीक है, फीमेल जो है उसको पब्लिक रोल तक एक्सेस दी जाए, और फीमेल को राइट टू वोट दिया जाए, ब्ला ब्ला। ओके, अगर हम सेकंड वेव की बात करें तो सेकंड वेव में जो वुमेन का उनके जो गोल्स थे वो ये थे कि फीमेल को सिर्फ पब्लिक रोल देना दैट इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि जो फीमेल है, फीमेल को आप बेटर अपॉर्चुनिटीज दें, फीमेल का जो प्रमोशन है और जो वेजेस इनइक्वालिटी है वो खत्म होनी चाहिए, और फीमेल जो है उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल वायलेंस, वो खत्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो फीमेल को मिलने चाहिए। अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव का जो फोकस था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे था, रेजिस्टेंस टू सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन पे था, और साथ ये था कि जो वुमेन है उनको और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज, और उसके बाद जो लैंग्वेज है उसमें चेंज लाई जाए ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। दैट वाज अ थर्ड वेव। ओके, सो बेसिकली हम कहते हैं कि ये तीन जो सोशल इनिशिएटिव्स लिए गए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लीगल इनिशिएटिव्स, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आप कहते हैं कि जो लीगली इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग लीगल इनिशिएटिव्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द डेवलपमेंट दैट वाज गोइंग टू बी मेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, तो हम कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की हद तक जिस तरह ऑब्वियसली कि जो आपके रिलेशंस हैं उसका जो ओवरऑल है, तो वो जो उसमें आपके जो सोशियो कल्चरल मैटर्स हैं, सो दैट इज अ डोमेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ओके, तो उसमें जो पहली दफा, जो अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन जो था जिसको अप्रूव किया था, जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, एंड दैट वाज पास्ड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1948, एंड द डेट वाज 10th दिसंबर। तो उसमें जो ये डिक्लेरेशन था फॉर द फर्स्ट टाइम जो वुमेन, जो अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, वर्ड यूज किया गया एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या ऑल ह्यूमन बीइंग। इट मींस फॉर द फर्स्ट टाइम जो डिस्क्रिमिनेशन थी मेल या फीमेल की वो खत्म कर दी गई। तो आपके जितने सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसमें जो सेक्स डिफरेंसेस हैं, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी के जो डिफरेंसेस हैं, दैट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट हियर। लेकिन ये जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, इसका इशू ये था कि दैट वाज नॉन बाइंडिंग। जो यूडीएचआर है ये बेसिकली दैट वाज अ गाइडलाइन, ओके, दैट वाज अ स्टैंडर्ड रूल्स, ठीक है, और यू कैन से दैट दे आर गोइंग टू असिस्ट यू दैट ऑन विच पैरामीटर्स यू आर गोइंग टू मेक योर ओन लेजिस्लेशन, ठीक है। ओके, तो बाद में जो एक और डेवलपमेंट हुई दैट इज नोन एज अ डीडा, डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन, डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये जो डीडा है दैट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1967। अब इसमें जो इशू था वो ये था कि जो रिपोर्टिंग है दैट वाज वॉलंटरली, ओके, तो दैट वाज नॉट मैंडेटरी दैट यू आर गोइंग टू रिपोर्ट एवरी वायलेंस एंड यू हैव टू मेक सम इनिशिएटिव्स। तो क्योंकि उसमें जो एक विलिंग कंपोनेंट था जिसकी बेसिस पे दैट वाज नॉट more you can say that it could be executed. Another important that was made that is known as a CEDA. CEDA is a convention on elimination of all form of discrimination against women. CEDA जो थी that was open for signature by to United Nations in 1979 and it was ratified in 1981. अब जो सीडा थी, सीडा वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट वाज अ बाइंडिंग एज वेल। सीडा में ये था कि आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो सोशियो जो कल्चरल इसमें सोसाइटी में कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, आप उसको खत्म करेंगे। दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके बाद हम कहते हैं कि जो इकोसॉक का डिक्लेरेशन था, द मिनिस्टर डिक्लेरेशन, उसमें
जो वायलेंस है उसको कहा गया कि वायलेंस को खत्म करेंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है। और वायलेंस में जो फिजिकल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है और साइकोलॉजिकल वायलेंस है उसकी बात की गई। और फिर जो यूएन कॉन्फ्रेंस जो, अच्छा ये जो इकोसॉक था दैट वाज पास्ड बाय यूनाइटेड नेशन, इसमें जो था दैट वाज पास्ड इन 1990, ठीक है। ओके, और जो यूएनसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट, दैट वाज पास्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1993। और इसमें ये कहा गया कि फीमेल का जो राइट टू मैरिज है, राइट टू एजुकेशन है और उसका जो राइट टू फैमिली प्लानिंग है दैट वाज प्रोटेक्टेड। फिर बीजिंग कॉन्फ्रेंस आ जाती है, दैट इज नोन एज फोर्थ इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस। ओके, अब बेसिकली हुआ ये था कि जब हम कहते हैं ना कि सीडा आया 1979 में ओपन फॉर सिग्नेचर, तो उसमें जो एक मेजर पीछे कंट्रीब्यूशन था वो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का था, जो कि 1975 में हुई थी इन मेक्सिको। तो जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी इन वुमेन, उसको कहते हैं बेजिंग डिक्लेरेशन, जिसमें ये कहा गया कि जो वुमेन है, वुमेन को आप उनकी इक्वालिटी को इंश्योर करोगे और जो जेंडर्स हैं, जेंडर्स को आप जो मेन स्ट्रीम है, जेंडर जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है उसको प्रमोट करेंगे, कि आप जेंडर्स पर्सपेक्टिव का जो प्रोग्राम्स में और पॉलिसीज में उसको आप एनकरेज करोगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बेजिंग डिक्लेरेशन। फिर रोम स्टैट्यूट आ जाए। रोम स्टैट्यूट में बेसिकली रोम स्टैट्यूट में ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रोम स्टैट्यूट, ओके। और इसमें जो वॉर क्राइम्स हैं, स्पेशली रेप और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप ड्यूरिंग वॉर टाइम, उनको डिस्करेज करने के जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्राई किया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325, रोम स्टैट्यूट वैसे बाय द वे पास हुआ था 1998 में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो थी, इसमें जो वुमेन का जो स्टेटस है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो इन सिक्योरिटी एंड इन द डेवलपमेंट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड, एंड दैट वाज रेजोल्यूशन वाज पास इन 2000। ओके, अब हम आ जाते हैं कि एनालाइजिंग चेंजिंग मीनिंग्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये बेसिकली लम्बोर्डो एट अल जो है उसने इसको डिफरेंशिएट किया था कि ये बेसिकली इसके दो मीनिंग्स हैं या दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है श्रिंकिंग और दूसरा बेंडिंग। जब हम श्रिंकिंग की बात करते हैं, श्रिंकिंग मीन्स टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, दैट वुमेन दे नीड टू बी गिवन a due share in employment opportunities, and basically that is also going to supported by women in development, that your development is not complete, your development may not be considered as a real development unless women they are going to be made part of the development process. अगर हम इसको देखें वेड को, तो दैट वाज गोइंग टू बी सपोर्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में, यू नो वेरी वेल, 55 to 60 मिलियन पीपल दे लॉस्ट देयर लाइव्स, ओके, दैट वाज जस्ट इन यूरोप। और उसमें से जो 27 मिलियन थे रशियन थे, 6 मिलियन ज्यूज थे, और उसमें ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल जो थे वो डिस्प्लेस थे और रिफ्यूजी थे। सो अगेन यू कैन से दैट वाज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और जो वेस्ट है उसमें वो जो डिवीजन थी फीमेल का इनिशियली एज अ होम मेकर, वो फिर खत्म होगी, क्योंकि डेवलपमेंट में वेमेन को उनके रोल को सपोर्ट करना पड़ा ताकि वो डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और उनके लिए फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। ओके, दूसरा है बेंडिंग। जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो बेंडिंग मीन्स के इकोनॉमिक प्रोग्रेस could only be achieved through the involvement of genders. So you can say gender equality is a tool to achieve economic progress, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें फिर अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक आपने ग्रोथ करनी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो दिस इज अंडरस्टूड दैट वुमेन दे आर गोइंग टू बी दे आर आल्सो गोइंग टू बी एनकरेज्ड एंड देयर इंपॉर्टेंस दैट आर गोइंग टू बी रियलाइज्ड हियर। और उसमें हम ये देखते हैं कि जो जापान है, जर्मनी है, उसने जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वो उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल को दी, ठीक है, जिसकी बेसिस पे फिर वो जो आपकी ये जो हाई टेक प्रोडक्ट्स है उसमें आए, तो वुमेन को भी उसमें लेके आए, एंड अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर trade surplus and they're going to increase their investment as well. Okay. और अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, so they are also going to have a mixed strategy, shrinking and bending. That at the same time you need to create more opportunities for women, but on the other hand, when you're going to achieve your national targets and you are going to make more, you're going to make your more part in international development, then obviously you have to take support from the genders. Okay. और अगर हम देखें कि ये जो जेंडर इक्वालिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन है, इस स्लोगन की वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि आपका जो फर्स्ट टाइम आपने जो टारगेट सेट कर लिए और आपने क्लियर कट गाइडलाइन दे दी
कि आपने हर बेसिस पे इंडिविजुअल्स को इक्वालिटी में लेके आना है, दैट वाज अ बाइंडिंग, तो दैट इज नोन एज फोर्थ इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन बीजिंग। तो इवन ये देखिए कि उसके बाद जो एक इमीडिएट रिजल्ट है कि आफ्टर 5 इयर्स जो सर्टन इंप्रूवमेंट आई उस स्लोगन की वजह से, जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन, उसमें एक तो ये कि जो गर्ल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो पहले कितनी थी, अराउंड 65, आफ्टर 5 इयर्स वो कितनी होगी, मोर देन 75। और अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें कि हुआ आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल, तो पहले 65 थी, दैट नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 32 मिलियन। और अगर हम फीमेल यूथ लिटरेसी की बात करें फ्रॉम द एज 15 टू 24 इयर्स, सो दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 90%। अगर हम मैरिज की बात करें, सो चाइल्ड मैरिज अर्लियर दैट वाज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड, you can say you're going to find 1 out of 4 cases, but after 5 years you are going to find 1 out of 5 cases, okay। और अगर हम एच आई वी इन्फेक्शन की बात करें फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू 19 ईयर्स, और ये उसके जो नंबर ऑफ केसेस था वो था तकरीबन 280,000, एंड दैट वाज इंक्रीज टू 140,000 फ्रॉम 1995 टू 2000, ठीक है, विद इन 5 ईयर, ओके। और अगर हम कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, तो अगेन हम कहते हैं कि क्या जो जेंडर स्टडी है, जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन, सो क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? क्योंकि अगर ये एक्सेप्टेड जेंडर इक्वालिटी एज अ जो जेंडर इक्वालिटी का स्लोगन है, अगर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, तो इट मीन दैट इज नॉट अ पॉपुलर स्लोगन। सो यस, यू कैन से इट इज अ पॉपुलर स्लोगन, क्योंकि जो वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज हैं, लाइक यू कैन टॉक ऑफ इवन व्हेन यू कैन टॉक ऑफ IMF, यू कैन टॉक ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम्स, ठीक है, तो उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें भी जो वुमेन की पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है। तो जो डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आप नेशनल पॉलिसीज को देखें वेरियस कंट्रीज की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इवन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 है, तो वो भी उसको इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। तो हम कहते हैं कि वो यू कैन से यस इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाउ जेंडर इक्वालिटी एज अ पॉपुलर स्लोगन। और जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर गोइंग टू हैव मोर ह्यूमन चॉइसेस। जब हम ह्यूमन चॉइसेस की बात कर सकते हैं, तो वो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी प्रोफेशन, कि इनिशियली जो वुमेन थी, इवन उनके लिए यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमेरिका, कि वहां पे जो मेडिसन का फील्ड है और उसमें लॉ का फील्ड है, इनिशियली इन दो प्रोफेशन में फीमेल की एंट्री बैन थी। और बाकी कुछ प्रोफेशन में जो फीमेल अलाउ तो थी, लेकिन उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि वो नाइट शिफ्ट पे काम नहीं कर सकती। सो जब हम इसकी बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन, तो हम उनके जो इंडिविजुअल की चॉइसेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कि एक तो उनके लिए नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, उनको हर आप प्रोफेशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप उनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो उसमें भी आप उनको इक्वालिटी लेके आ रहे हैं, उसमें जो वेजेस का जो है स्ट्रक्चर उसमें भी इक्वालिटी लेके आते हैं, और उनके जो प्रमोशन स्ट्रक्चर वर्टिकल स्ट्रक्चर उसमें भी आप उनको प्रमोशन उनको अपन श्योर करते हैं, और उसमें भी आप इक्वालिटी लाते हैं। सिमिलरली व्हेन यू टॉकिंग ऑफ एनरोलमेंट, तो हम कहते हैं कि जो एनरोलमेंट है, स्पेशली एजुकेशनल एनरोलमेंट, तो उसमें वुमेन जो है उनको एनकरेज किया जाता है, और इवन मोर देन 100 कंट्रीज दे आर मेकिंग देयर बजट इन सच अ वे टू सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी। और सिमिलरली हम कहते हैं कि क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एट नेशनल लेवल बट आल्सो एट इंटरनेशनल लेवल, जिसकी वजह से जो वुमेन है उनमें ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप स्किल्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और इवन करंटली इन 46 कंट्रीज वेयर वुमेन दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 30% सीट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो वुमेन है दे आर गोइंग टू मेक मोर देन 20% सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। और जो वुमेन है उनको इवन पॉलिटिकल रोल में उनको एक तो जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी उनको इनकरेज किया जाता है, और साथ हम कहते हैं कि इवन उनको थ्रू कोटा सिस्टम भी इनकरेज किया जाता है और उनको लीडरशिप रोल में लाया जाता है। और इवन अब पाकिस्तान की भी बात करें, तो पाकिस्तान में फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, यू नो यू हैव थ्री कॉन्स्टिट्यूशन, 1956, 62 एंड 73, ठीक है। बट नाउ व्हेन यू टॉकिंग व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड, दैट इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवन आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956, उसमें भी वुमेन के लिए रिजर्व सीट थी, पॉलिटिकल कोटा आप कह लें, और 62 में भी और 73 में भी। और इनिशियली तो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, फीमेल के लिए जो रिजर्व सीट थी, दे वर 10 इन नंबर, बट नाउ करंटली जो एक इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इवन आप नेशनल लेवल की बात करें, तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में फीमेल का कोटा कितना है, दैट इज 17%, दैट वाज इंक्रीज बाय लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस बाय परवेज मुशर्रफ। और लोकल बॉडीज इलेक्शन में फीमेल का जो कोटा पाकिस्तान में वो 33% है।
ओके एनीओ, उसके बाद हम कहते हैं कि नो द कंट्रीज आर गोइंग टू मेक मोर बैलेंस लॉज, ठीक है। उसमें आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, और विमेन को इवन आप थ्रू सर्टेन रिलैक्सेशन उनको अकोमोडेट करते हैं, ताकि दे आर गोइंग टू बी मेड पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, एंड दे आर गोइंग टू बी ऑफर्ड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, ठीक है। जिस तरह इवन आपकी सिविल सर्विसेज में भी वुमेन को कोटा दिया जाता है। अगेन जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर, जेंडर इक्वालिटी जो है उसको पॉपुलर स्लोगन के कॉन्टेक्स्ट में ना, कि ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो नेग्लेक्टेड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको भी आप एनकरेज करें। और इसी तरह जब हम कहते हैं कि यू कैन टॉक ऑफ इस्टर टैक्स, ऑनर किलिंग, इनहेरिटेंस लॉस, ठीक है, मैरिज राइट्स, और उनके जो है जो बाकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है सो ऑन। तो इसमें हम कहते हैं कि जो लॉ मेकिंग होती है तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उसमें इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि उसमें इक्वालिटी और किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बायसनेस ना हो। ओके, फिर हम कहते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ आम्स्टरडैम है, अगर हम उसको रीजनल लेवल पे देखें तो जो जब हुआ था ना फोर्थ वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन बीजिंग, तो उसके बाद 1997 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ आम्स्टरडैम, जिसके बाद जो दैट इज अ बाइंडिंग ऑन यूरोपियन यूनियन, ठीक है, कि जो भी मेंबर है यूरोपियन यूनियन के उन पे बाइंडिंग है कि वो जो भी लॉ मेकिंग करेंगे उसमें जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है उसको इंश्योर करेंगे और जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करेंगे। और अगर हम करंटली देखें कि ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जो ये जो स्लोगन है जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन, उसकी बेसिस पे जो वुमेन है दे गॉट सम इंडिपेंडेंस, 100% तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, दैट इज अ सोशल चेंज, कि इट टेक्स टाइम व्हेन चेंज दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर कल्चर, बट things they are going to be done in a right way, and there's some significant improvement as well, कि currently हमारी सोसाइटी में ओवरऑल वर्ल्ड की जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं अराउंड 52% जो वुमेन है they have freedom of their marriage and they have more control over their fertility and they can manage their health care as well। और at the same time हम कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इसको campaign को भी लॉन्च कर रहा है, प्रोग्राम को भी, act for equal, so that program that is going to give more awareness in term of gender equality। और वो इसमें जो certain task है उनके बारे में परफॉर्मेंस और ये वो आपसे शेयर कर सकते हैं चीजें। और last but not least we are going to acknowledge that yes, women जो हैं, women they are integral part of the society, और without women involvement आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्रेस है सोसाइटी की वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि yes that is true, gender equality is a popular slogan। ओके, अगर हम क्विज की तरफ मूव करते हैं तो उसमें you can build your own thesis statement as well, and even if you are going to support this slogan, yes gender equality is a popular slogan, but you are going to make a thesis statement another way, yes you can do it, okay, and you may share in comment section। or what are the reasons for oppression by Simone de Beauvoir, okay। If you could remember what I shared with you, you can mention here, or how many countries lack laws protecting women from domestic violence, I've shared such statistics with you earlier। और जो सीडा है, कन्वेंशन एलिमिनेशन फॉर ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, व्हेन इट वाज गोइंग टू बी ratified by United Nations, or what is act for equal, okay, so that is your quest। if you have any question, if you have any ambiguity, or you want to have more understanding, please feel free to ask your question in comment section, okay। thank you very much for your patience and for spending your time। so if you have not subscribed this channel so far, you can do it for more videos, okay, Allah Hafiz।